پر ایونٹ کا سپر مرحلہ، کراچی میں سیکیورٹی سخت، ڈی جی رینجرز کا نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، متبادل ٹریفک پلان جاری، 5 مقامات پر پارکنگ ہوگی، شائقین کے لیے شٹل سروس چلے گی۔ بلاول بھٹو، اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتا چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے۔ تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ ملکی سیاست میں پھر یو ٹرن کی ٹرن، مقصد تک پہنچنے کے لیے فیصلے بدلنا ضروری، پرچی دیکھ کر تقریر کرنے والا لیڈر نہیں بن سکتا۔ عمران خان کا بلاول بھٹو پر طنز، جعلی اکاؤنٹس کیس کا ذکر کر کے آصف زرداری پر بھی تنقید۔ غربت ختم کرنے اقتدار میں آئے ہیں، پسماندہ طبقے کو اوپر لائیں گے، چاچروں میں خطاب۔ پیٹھ پیچھے باتیں نہ بنائیں، جواب دینا ہے تو پارلیمنٹ میں آئیں۔ وزیر اعظم کے خطاب پر بلاول بھٹو کا رد عمل، اچھا ہوتا اگر عمران خان مودی کے خلاف بھی اسی لہجے میں بات کرتے، پی پی چیئرمین کا ٹویٹ۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، حکومت نے پنجاب میں 198 مدارس، 38 اسکول، 6 کالجز تحویل میں لے لیے، 150 ارب سے زائد کی جائیدادیں ضبط، کالعدم تنظیموں کے 52 سرگرم کارکن گرفتار۔ رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم آج لاہور میں پنجاب انرولمنٹ پالیسی کا افتتاح کریں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطح اجلاس میں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گے۔ عمران خان اور عثمان بزدار کی 1 on 1 ملاقات بھی شیڈیول۔ ہم نے پائلٹ واپس کر دیا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون کریں گے، ایسی غلط فہمی نہ رہنا کہ آپ نے کچھ بھی کیا یہاں سے جوابی کارروائی ہوگی۔ جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان جاگ رہا ہے، آخری دم تک لڑیں گے۔ جواب خان کی پھر وارننگ، مودی سرکار کو امن کے پرچار اور مسائل بات چیت سے حل کرنے کا پیغام۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا ایک اور بڑا قدم، پاکستانی ہائی کمشنر کی آج بھارت روانگی۔ سہیل محمود واہگہ کے راستے امرتسر پہنچیں گے، ایئر انڈیا کی فلائٹ سے آج ہی دہلی روانگی بھی شیڈیولڈ۔ جنگ میں پٹائی کا خوف، بھارتی فضائیہ کے اڑ گئے ہوش، ایک اور انڈین طیارہ زمین بوس۔ میک 21 راجستھان میں گر کر تباہ، 1 مہینے میں تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ پاکستان کی جانب سے جارحیت کا منہ توڑ جواب، بھڑکیں لگانے والوں پر لرزہ طاری۔ بھارت کی روس سے $3 ارب کی اکولا 2 نیوکلیئر سب مرین لینے کی ڈیل۔ دفاتر میں تعینات 20% فوجیوں کو سرحدوں پر بھیجنے کا فیصلہ، راجوڑی میں سرحد پر مزید 200 بنکرز بنانے کی منظوری۔ مودی سرکار کا کھیل پر بھی سیاسی وار، پھر بھی پڑ گئی مار۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ، بھارتی ٹیم کو فوجی ٹوپیاں پہنا دی گئی۔ پاک چین دوستی فولاد سے بھی مضبوط، حالیہ کشیدگی خطے کے مفاد میں نہیں، اسلام آباد اور نئی دہلی مل بیٹھ کر معاملات حل کریں، چینی وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب۔ علاج کے نام پر تمسخر اڑایا گیا، حکومت پھر غیر سنجیدہ، مزید تصحیح برداشت نہیں کریں گے۔ نواز شریف کا اسپتال منتقل ہونے سے صاف انکار، نیک خواہشات پر بلاول سمیت اپوزیشن رہنماؤں سے اظہار تشکر۔ 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے سیاستدان سے انتقام افسوسناک ہے، شہباز شریف کا بھائی سے ملاقات کے بعد بیان۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، نیب راولپنڈی کی پہلی گرفتاری، خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کے الزام میں سابق سیکرٹری کے پی ٹی آفتاب میمن زیر حراست، 13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستانی عوام نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ
कहते रहे जी हमने कोई 10,000 मेगावाट सिस्टम में बिजली शामिल कर दी। पंजाब में जो बिजली अब तक शामिल हुई है वो कोई 2400 के 2500 मेगावाट के करीब है। नून लीग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूट मार की। तजुर्बाकार टीम के कारनामे कौम के सामने हैं। तहरीक इंसाफ लुटेरों को अंजाम तक पहुंचाएगी। लाहौर में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, वक्फा सवालात का भी बॉयकॉट। फैसला हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को नहीं मिलेगी। सईद गनी और इम्तियाज शेख की तनकीद। कराची में एक और उजरती कातिल गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम ने सब कुछ उगल दिया। गिरोह के अरकान की तादाद 6, 20 से जायद कत्ल किए। हुसैन और पीर जी के इंकशाफात। मुबीना टाउन से मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर साथी समेत पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गर्ल्स स्कूल्स में फीमेल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। रिटायर्ड अमले की जगह भी खवातीन ही तैनात होंगी। सूबाई हुकूमत का ऐलान। सर्दी अभी गई नहीं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज रिमझिम मुतवक्के। कराची में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। किम जोंग उन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। शिमाली कोरिया ने हथियारों पर दोबारा तजुर्बात किए तो मायूसी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग 4 को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हुए आपको बताएं कि टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। जीत के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली भी बना ली गई है। आज लीग के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर से मुकाबला होगा। मोहम्मद समी और फखर जमान दोनों ही कप्तान फतह के लिए पुरुम्मीद हैं। कराची पीएसएल के रंग में डूब गया है। नेशनल स्टेडियम पीएसएल की मेजबानी करने को तैयार है और कराची में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिलाल, तो आपने देखा कि किस तरह से कराची वाले खुश हैं क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं और कराची वाले इस बात पर भी बहुत पुरजोश नजर आते हैं और कहते हैं कि पीएसएल की कामयाबी के बाद दीगर गैर मुल्की टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। कराची के शहरी मजीद क्या कह रहे हैं, किस तरह से पीएसएल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जरा आप भी देखें। सना फातिमा कराची से अपडेट कर रही थी। कराची वाले किसी से पीछे नहीं हैं। इस फेस्टिवल को भरपूर एंजॉय करने के लिए तैयार हैं और इस सारी जो पीएसएल की फेस्टिविटी है उसमें गोल लूट लो भी किसी से पीछे नहीं है। इनामात की खूब बारिश कर रहा है। जी हाँ, प्ले एंड विन में जाकर आसान सवालात के आपने जवाबात देने हैं और उसके नतीजे में ढेरों इनामात आपके हिस्से में आएंगे। मोदी सरकार का खेल पर भी सियासी वार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम को फौजी टोपियां पहना दी। कैंगरूज ने हरीफ टीम को हार की टोपी पहना दी। पाकिस्तानी नैयाद उस्मान ख्वाजा की सर्जिकल स्ट्राइक सेंचुरी बनाकर भारतीयों की खूब धुलाई की। पी का जंगी जुनून खेल के मैदान में भी पहुंच गया। मोदी सरकार का ऑस्ट्रेलिया भारतीय क्रिकेट टीम के फौजी टोपी पहनने पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहा जा रहा है कि जेंटलमैन गेम को सियासी बनाने पर आईसीसी इस पर कार्रवाई करे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आईसीसी भारतीय टीम को ऐसे इकदामात से रोके। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पीसीबी मामले पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी करे। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर पाकिस्तानी टीम को स्याह पट्टियां बांधकर खेलने का मशवरा भी दिया है वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने। तो जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने जेंटलमैन गेम के साथ खिलवाड़ किया, वहीं पर शायकीन ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो तो दिया ही, लेकिन सरकारी सतह पर वजीर इत्तलात ने इस सिलसिले में बात करते हुए ये कहा है कि जेंटलमैन गेम को सियासी बनाने पर आईसीसी इस सिलसिले में कार्रवाई करे और भारतीय टीम को ऐसे इकदामात से रोके, जबकि मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम भारत की तरफ से हो रहे हैं उस पर पाकिस्तानी टीम को स्याह पट्टियां बांधकर खेलने का मशवरा दिया गया है। अपडेट करें आपको कि पाक भारत कशीदगी में कमी से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आज भारत रवाना होंगे और सिफारती जराये का ये बताना है कि सुहेल महमूद वाहगा बॉर्डर के जरिए अमृतसर पहुंचेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बेसारिया भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी नजर आ रही है। सिफारती जराये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आज भारत के लिए रवाना होंगे। इसके साथ साथ भारतीय हाई
कमिश्नर अजय बिसारिया भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सुहेल महमूद वाघा बॉर्डर के जरिए अमृतसर पहुंचेंगे। सिफारती जराए ऐसा बता रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद जो कि आज भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पायलट वापस खौफ की वजह से नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, इसीलिए ये कदम उठाया। लेकिन फौज और अवाम तैयार हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए आप सरहद पार खून करेंगे तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें, भरपूर जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान की ज़मीन किसी मुसल्लह ग्रुप को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। पुलवामा में आपके कैजुअल्टीज हुई हैं, तो जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये खौफ की वजह से नहीं है। हमारी एक फौज पिछले 10-15 साल में उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, हमारी फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलत फहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहां से जवाबी कार्रवाई होगी। ये सारी पाकिस्तान की पार्टीज ने फैसला किया कि हमने इस मुल्क में किसी भी आम मिलिशिया को हमने आगे से फंक्शन नहीं करने देना। पाकिस्तान की जमीन किसी किस्म की दहशतगर्दी मुल्क से बाहर यह हुकूमत इजाजत नहीं देगी। और चीन ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए किरदार अदा करने का एतराफ़ करते हुए कहा कि दोनों एटमी मुमालिक मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल करें। में जारी कशीदगी को कम करने में चीन का किरदार। चीनी वजीर खारजा ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए चीन ने तामीरी किरदार अदा किया। गी ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली को मिल बैठकर मामलात हल करने चाहिए। चीन न्यूक्लियर हथियारों से लैस हमसाया ममालिक पर जोर देता है कि वो जल्द अज जल्द मसाइल हल करके लंबे अरसे तक बेहतर ताल्लुकात को मजबूत बनाए। चीनी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि बीजिंग पाकिस्तान और भारत का कशीदगी को खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आने का खैर मकदम करेगा। और भारत में इलेक्शन है और वहां पर मौजूद सहाफ़ी सर्वे करते नजर आ रहे हैं। इसी एक सर्वे के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने एक वोटर से सवाल पूछा कि क्या आपको इलाके में बेहतरी नजर आई है, तो जवाब मिला कि यहाँ पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अभी बात मुकम्मल ही ना हो पाई थी कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी पर काबू पाने की कोशिशों का पोल खुल गया। कैसे, जरा देखिए। कुछ यहाँ के जो पुराने मुद्दे हैं उनमें विकास आया है, कुछ बदलाव आया है। भाजपा सरकार के आने से पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी, चोरी। खबर यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमत पंजाब ने सूबे में मुतअद्दिद मदारिस इदारे अपनी तहवील में ले लिए हैं। आखिर ये इदारे हुकूमत पंजाब कैसे चलाएगी, फंड्स की फराहमी किस हद तक होगी, इस हवाले से देखते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के मदारिस और अदारों को तहवील में लेने की कार्रवाई। चंदे और अतियात से चलने वाले अदारों को अब कैसे चलाया जाएगा, हुकूमत का इस मामले पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत से पॉलिसी बनाने का फैसला। महकमा एजुकेशन अगर कोई अस्पताल टेक ओवर किया गया है तो महकमा से उन स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके उसके बेहतर तसर्रुफ के लिए और उनको उसी तरह अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ मदारिस, डिस्पेंसरियाँ, स्कूल्स और कॉलेज को तहवील में लिया गया है, जहाँ पर हुकूमत पंजाब ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करके नज़्म व नस्क संभाला है। उसके लिए मुकम्मल तौर पर एक प्लान बनेगा और उन अदारों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अदरवाइज़ वहाँ पर जो मामलात हो रहे थे उनको चलाने के लिए लाजमी बात है गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़ंड के ज़रिए उनको चलाएगी। इनमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, कंप्यूटर से आशना किया जाए और इनकी बेहतर सूरत निकाली जाए। हुकूमत पंजाब ने वाज़ेह किया है कि जिन अदारों को तहवील में लिया है वो चलते रहेंगे। तहवील में लिए जाने वाले अदारों के हवाले से हुकूमत पंजाब पुरअज़्म है कि इनको चलाने के लिए इंतजामी इक़दामात और माली वसाइल की फराहमी के लिए भरपूर हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकसद तक पहुँचने के लिए यू टर्न ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए उनका यह कहना था कि जिद्दोजहद करने वाला लीडर ही यू टर्न लेता है, पर्ची देखकर तकरीर करने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। वो छाछरों में खिताब कर रहे थे। अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तान में,
عوام کو انگریزی آتی نہیں, اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی. انہوں نے بار بار طنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے. بلاول بھٹو اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے. آپ اگر یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد صاحب اس مشکل وقت سے نہ گزرتے. جب این آر او ملا سرے مال کا پیسہ بھی آپ نے ہضم کر لیا. وہ ٹائم تھا کرپشن اور منی لانڈرنگ سے یو ٹرن کرنا. کر جاتے تو آج یہ جو کبھی نیب کے چکر لگ رہے ہیں, اور والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے, نام تو آپ کا بھی آ گیا فیک اکاؤنٹس میں. تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.